जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं? आपको आवाज़ आ रही है? आपका माइक म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। अनस, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आप कंफर्म कर सकते हैं? जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी साथ? जी अनस, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन में हम जो है वो जो रॉस की बुक है उसका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर 2 में एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी डिस्कशन है, और इसमें काफ़ी एप्लीकेशन लेवल जो है उस पर जो डिफरेंट मैकेनिज़्म हैं उनकी एक्सप्लेनेशन की गई है। इसको हम जो है वो जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं इसमें, जो इस चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशंस topic will be covered, and we'll move towards the web and HTTP because they are very famous on application layer. Then we move towards the FTP. The fourth section is on electronic email, in which the simple mail transport protocol and post office protocol version 3 and IMAP, these protocols are covered. Then section 5 is linked with the okay, thank you very much for confirming के जो you can hear me, आपको मेरी वॉइस आ रही है. So in the fifth section, जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है सर. okay, thank you. In the fifth section, we will be covering the DNS because DNS is the backbone of internet. So that's why it is important to cover. And in 2.6, the peer-to-peer applications are covered. Then lastly, the topic which we will not cover is related with the socket programming with UDP and TCP. But if any one of you are interested to primarily choose it as a project for this course, as a uh, writing report and presenting, so you can go for it, socket programming with UDP and TCP. We will be explaining a small setup for experimentation as well. So the goals in chapter 2 are as follows. We will learn different concepts and the implementation of various protocols at the network, at the application primarily layer. So, uh, so these are transport layer service models. These are the important concepts, and the client server and peer-to-peer paradigms.
जो कि आमतौर पे हम अंडरग्रेड में भी पढ़ के आते हैं, और यहाँ पे भी हम उनको थोड़ा सा इन डेप्थ जो कम्युनिकेशन है उसको देखेंगे। लर्न अबाउट द प्रोटोकॉल्स बाय एग्जामिनिंग पॉपुलर एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल्स। तो इस किताब ने जो प्रोटोकॉल सेलेक्ट किए हैं वो उनकी लिस्ट यहाँ दे दी है। HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS। सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो एक अलग चैप्टर का हिस्सा है, तो यहाँ वो कवर नहीं है। एंड सिमिलरली क्रिएटिंग नेटवर्क एप्लीकेशंस थ्रू द सॉकेट API, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वी आर नॉट interested in it because it's related with programming. But if any student has a strong interest in programming और अपनी जो है वो चैलेंज लेना चाहते हैं, इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, so can actually select a program and check if it is working and then modify it. कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, आप इसमें यकीनन इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। So there are many network applications. For example, Zoom is one of the applications जिसको हम इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, and we are using it for our online session. But conventionally, our standard applications at network that uses network are primarily email. Email is usually used for office and personal communications. The web, which is a primarily different documents, and text messaging, heavily used nowadays in the form of WhatsApp, and also there are other applications which using the text messaging and other data messaging as well. That include voice and the images and also audio, the variants like animations, GIF. So remote logging application, P2P file sharing, इसमें वो हमारे BitTorrent और इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। मल्टी यूज़र नेटवर्क गेम्स की तो दुनिया ही अलग है। देन स्ट्रीमिंग स्टोर्ड वीडियोस, इसमें जो है वो कुछ फेमस जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो उनके नाम लिखे हुए हैं। यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है। वॉइस ओवर IP, Skype is using it. So once Skype was very famous, nowadays because WhatsApp has a similar and very easy to use setup. No, and also there are other applications as well. Then real time video conferencing, जो बिजनेस सेटअप हैं और जो ट्रेनिंग के एडवांस ट्रेनिंग के जो सेटअप्स हैं, they primarily use this kind of dedicated equipment for video conferencing. सर्जिकल के जो सेटअप्स हैं, रिमोट सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, and also social networking, search, and there are many more. अगर हम इनकी लिस्ट बनाएं तो usually we are also using few network applications most of the time. अगर आप देखें तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड नेटवर्क दिखाया गया है राइट साइड में। ये वो स्टैंडर्ड नेटवर्क है जो ये बुक यूज़ करती है। सो द बुक हैज़ क्रिएटेड a standard network diagram, and this diagram is primarily used to explain different concepts in the book. So when we creating a network application, we write programs that run on different end systems. Okay. When we talk about end system, तो सबसे पहले तो हमें मोबाइल फ़ोन है हमारा, लेकिन इससे मुराद ये है कि एक ऐसा प्रोटोकॉल स्टैक जिसके अंदर एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें एक राउटर की,
तो हम जानते हैं कि राउटर जो है इट कंटेन 3 लेयर्स, यानी फिजिकल लेयर, देन द नेटवर्क लेयर, और इसमें जो है एक डेटा लिंक लेयर जो इनके दरमियान में, so 3 layers. There is no application layer inside the router, so there is no usual application or the defined standard way to run application interactively on a router. सिर्फ उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस डिज़ाइन की गई हैं जो उस राउटर से इंटरेक्ट करती हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है सेटिंग्स उनको वेरीफाई करने के लिए कि वो सही है या उन पे अपडेट करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन वो भी आमतौर पे होस्ट पे की जाती हैं। और राउटर्स जो है वो उनके अंदर बिल्ट इन जो मैनेजमेंट के टूल्स जो है वो होते हैं और उनको डायरेक्ट भी एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक एक जनरल पर्पस यूज़र एप्लीकेशन की बात है, राउटर डू नॉट रन एन एप्लीकेशन लेयर for the packets which are coming to the router. So that's why, and even the transport layer gateways, they do not run the application layer protocol for the packets because their task is different. So we are talking more about the communication over network. So these programs help to communicate over the network. And few examples are web server software communicates with the browser software. So somewhere in the whole network there are servers, and these servers are dedicated to run the server software in a conventional and standard network, whereas the hosts are specialized to run the user application or the client side applications. इसकी एक एग्जांपल जो है वो यहाँ बता दी गई है कि वेब सर्वर सॉफ्टवेयर and the browser software. So a program can be written in a way which can primarily communicate uh, these two components or processes. So no need to write for the network core devices. ये मैं बता चुका हूँ because the core devices do not run an application layer. They are not designed to run the application layer because network core devices do not run user applications. And application on end systems allow for rapid app development and propagation. So it is primarily running on the user side. यहाँ अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई आप लोग शेयर करना चाह रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। सर नेटवर्क कोर डिवाइसेस में सर कौन कौन सी हैं? आमतौर पे जो कोर जो डिवाइसेस हैं उनमें हम जो नेटवर्क का पाथ की बात कर रहे हैं, और पाथ में जो कोर डिवाइस है वो तो राउटर ही आता है। तो अगर आप इस डायग्राम में भी देखें तो कोर डिवाइसेस जो है उनमें आपको ये राउटर मिलेंगे। इसमें जो सिस्को की टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि एज सर्वर्स को डिफाइन करता है, और इसी तरीके से जो है वो कोर स्विचेस को डिफाइन करता है, और इसी तरीके से। लेकिन जनरली जो कोर नेटवर्क कोर डिवाइसेस हैं उनसे मुराद हम लेते हैं ऐसी डिवाइसेस जो प्राइमरीली फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, इन 3 लेयर्स के ऊपर काम कर रही है। अगरचे हम ये जानते हैं, आपका सवाल इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो एक्सेस पॉइंट है वो एक DHCP भी रन कर रहा होता है, यानी एक एप्लीकेशन लेयर, और इसी तरीके से उसके अंदर एक वेब ब्राउज़र भी होता है, वेब सर्वर भी होता है, जिससे हम उसको एक्सेस करके उसकी सेटिंग में चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, वो ये कि जो कोर पर्पस जो नेटवर्क डिवाइस का है वो पैकेट्स को राउट करना है, यानी पैकेट्स को राउट करना है, और दूसरा टास्क उसका जो हमने
चैप्टर 1 में देखा था, वो एक राउटिंग या फॉरवर्डिंग टेबल बना के अपने पास सेव करना। तो ये 2 टास्क उसके हैं। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि राउटिंग टेबल जो है वो स्टैटिक है, यानी हमने मैन्युअली एंटर किया हुआ है, तो अब सिर्फ एक ही टास्क बचती है जो नेटवर्क की जो डिवाइसेस हैं उनके पास, कि वो पैकेट को सोर्स और डेस्टिनेशन, यानी जो टारगेट है और जो सोर्स और डेस्टिनेशन उनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेट करवा दें। तो ये एक और उनका फंक्शन बचता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में और जनरल कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको हम कोर डिवाइसेस कह सकते हैं। लेकिन जब हम सिस्को का पर्सपेक्टिव देखेंगे और इसी तरीके से जो कंपनीज हैं उनका पर्सपेक्टिव देखेंगे, तो फिर उनके लिए हमें जो है वो डिफाइंड जो है वो आर्किटेक्चर मिलेगी, डिफाइंड आर्किटेक्चर मिलेगी। अगर मैं आपको उस कॉन्टेक्स्ट में दिखा दूं तो जो कोर नेटवर्क है वो आपका जो है, ये जो राइट साइड में 2 आपको क्लाउड से नज़र आ रहे हैं, जी आप सर, राउटर्स हैं। ठीक है, इनको आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, ये जो सबसे ऊपर वाला जो क्लाउड है, एज डिवाइसेस सर। जी जी, मैं वही उसी की तरफ आना चाह रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें तो ये जो राउटर है प्राइमरीली ये आपका इस पूरे नेटवर्क के लिए जो है वो एक एज डिवाइस के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इनको 2 या इससे ज़्यादा जो कैटेगरीज में कर सकते हैं डिवाइड, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो बुक का जो जनरल कंसेप्ट है उसमें जितने भी राउटर्स या ऐसे तमाम डिवाइसेस जो कि नेटवर्क लेयर तक हैं, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क, इन 3 लेयर्स पे काम कर रहे हैं, उन सबको जो है वो हम नेटवर्क कोर डिवाइसेस में ही क्लासीफाई करेंगे जनरली। ठीक हो गया? ओके सर। जी सर। वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं, अगर किसी को कोई और सवाल है तो वो पूछ सकता है यहाँ पे। ये हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और इसकी रिकॉर्डिंग फिर आपसे शेयर भी कर देंगे। जो लास्ट वीक में क्लास नहीं हो सकी वो हमारी एक कमिटमेंट थी यूनिवर्सिटी के साथ, तो वहाँ हमें कुछ प्रिपरेशन करनी थी डॉक्यूमेंटेशन की, तो उस वजह से हम लास्ट क्लास नहीं ले पाए। और हम कोशिश करेंगे कि एक एडिशनल क्लास लेके तो हम जो हमारा क्या कहते हैं जो पेस है वो उसको एक दफ़ा कनेक्ट कर लें। कुछ एग्जामिनेशन के हवाले से भी डिस्कस करना है, क्योंकि जो फाइलिंग स्ट्रक्चर हमें दिया गया है उसमें आपके क्विज़ेस और असाइनमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, जबकि आमतौर पर मैं प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट लिखवाता हूँ जो कि कन्वेंशनल और स्टैंडर्ड वे है। लेकिन अब चूँकि क्विज़ेस और असाइनमेंट की भी बात हो रही है तो मैं आप लोगों के लिए कुछ असेसमेंट्स जो है वो बना के शेयर कर दूँगा ताकि आप उसको वर्कआउट करके जमा करवा दें। उसकी भी बात इंशाल्लाह होगी। तो जैसे कि यहाँ पे ये कुछ जो है वो अपीयर हुए हैं कि जो एंड डिवाइसेस हैं, सर्वर्स एंड क्लाइंट्स, दे रन ऑल द लेयर्स ऑफ TCP/IP, यानी जो प्रोटोकॉल स्टैक है उसकी तमाम लेयर्स जो है उस पर रन। एक छोटे से प्रोटोकॉल स्टैक की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगी। अगर ये वेब सर्वर है तो इसका मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन लेयर जो है उस पर HTTP जो है वो उसकी बात कर रहे हैं हम। और इसी तरीके से क्लाइंट वेब एप्लीकेशन और जो वेब सर्वर है इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो HTTP के थ्रू है। तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हम HTTP जो है उस प्रोटोकॉल की बात करेंगे। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट लेयर हम जानते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट अंडर ग्रेड का सब्जेक्ट में पढ़ के आए हैं, लेकिन एनी हो अगर नहीं भी पढ़ के आए तो प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आमतौर पे 2 प्रोटोकॉल वेरी कॉमनली यूज होते हैं, एक कहलाता है TCP ट्रांसमिशन और UDP, जी जी, और एक UDP कहलाता है यूज़र डेटाग्राम। तो अच्छा, कुछ जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन के लेयर के प्रोटोकॉल हैं वो हम देखेंगे कि वो TCP और UDP दोनों को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आम तौर पे जो सिंपल एप्लीकेशंस हैं वो या तो TCP को यूज़ करती है या फिर UDP को यूज़ कर रही होती है। तो इस
इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट जो हमारा जो प्रोटोकॉल स्टैक होगा उसमें एक प्रोटोकॉल हमने एप्लीकेशन लेयर पे कम से कम डिफाइन करना होगा। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट लेयर पे या तो टीसीपी या फिर यूडीपी, दोनों में से कोई एक। ये जनरल सेटिंग है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो दोनों यानी यूडीपी और टीसीपी दोनों को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा ट्रांसफर के लिए टीसीपी को यूज कर रहे हैं और ऑथेंटिकेशन के लिए जो है वो फिर यूडीपी को यूज कर रहे हैं, या वाइस वर्सा कर लें। तो टीसीपी के लिए जो है वो एक कंट्रोल सिग्नल्स है, और जो क्या कहते हैं डेटा के लिए है वो यूडीपी है। इसी तरीके से नेटवर्क लेयर जो है आमतौर पे फेमस प्रोटोकॉल जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी जिसको कहते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोटोकॉल स्टैक बनेगा उसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे कि हर लेयर के ऊपर हम किस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब मैं कहीं पे भी जब मैं प्रोटोकॉल स्टैक का जिक्र करूं तो इसका मतलब ये है कि different protocols which are present on the different layers and they constitute a protocol stack। ठीक है, इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है, लेकिन इसको स्पेसिफिक रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो जब हम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये वर्चुअल कम्युनिकेशन जो शो हो रही है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, ये हम यूज़र लेवल पे देख सकते हैं। अगर इसका एक कंपोनेंट ही हम देख सकते हैं जो हमें नज़र आ रहा होता है डिस्प्ले पे, क्योंकि बैकग्राउंड में हम जानते हैं कि जो एप्लीकेशन लेयर है उसकी टास्क में एक टास्क कहलाती है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसको बैकग्राउंड में बाइनरी में कन्वर्ट करना है, किसी बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। और इसी तरीके से हम जानते हैं कि एप्लीकेशन लेयर में कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे इंक्रिप्शन होती है, और ये चीज़ें जो है ये हम देखेंगे कि जैसे सिक्योर सॉकेट लेयर है, एसएसएल प्रोटोकॉल है। कुछ चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में भी आती हैं। हम आगे चलना चाहेंगे क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी हद तक यहाँ डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन आर्किटेक्चर्स की। जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स एप्लीकेशंस के लिए अवेलेबल हैं वो एक जो स्ट्रक्चर है वो क्लाइंट सर्वर कहलाता है, और एक स्ट्रक्चर जो है वो पीयर टू पीयर कहलाता है। जो पीयर टू पीयर स्ट्रक्चर है इसको शॉर्ट फॉर्म में पी टू पी लिखा जाता है, और इन्हीं के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन आगे जो है वो होगी। तो सबसे पहले क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं। इन ए नॉर्मल सेटअप जो सर्वर होता है द सर्वर प्रोसेस, हम इसको फिजिकल सर्वर भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको प्रोसेस के तौर पर ट्रीट करें तो फिर हम एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम इसको हार्डवेयर की बात करें तो फिर हम इसको जो सर्वर सिस्टम है उसकी बात कर रहे होंगे। जो यहाँ पे नीचे जो है ये दो नज़र आ रहे हैं आपको, नीचे वाले क्लाउड में ये दो सर्वर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जो इनकी जो मेन फीचर्स हैं, द मेन फीचर्स दे एग्जिबिट, दे आर ऑलवेज ऑन, ये ऑन होते हैं ऑलवेज। दे हैव ए परमानेंट आईपी एड्रेस एंड यूजुअली दे आर प्लेस्ड इन द डेटा सेंटर्स। तो ये इनके कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं आमतौर पे तमाम सर्वर्स। लेकिन अगर हम क्लाइंट का पर्सपेक्टिव देखें तो क्लाइंट हर वक्त ऑन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल फ़ोन का वाईफाई ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर मोबाइल फ़ोन का वाईफाई ऑफ कर देते हैं तो अब ये ऑफलाइन हो गया है, अब ये इंटरनेट का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन थोड़ी देर पहले ये इंटरनेट का हिस्सा था। जैसे ही वाईफाई ऑन करेंगे तो इसको एक नया आईपी एड्रेस जो है वो असाइन होगा, और वो आईपी एड्रेस ऑब्वियसली किसी ना किसी बैक एंड पे
यानी या एक डिफरेंट आईपी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। सो द क्लाइंट सोल पर्पस इज टू कम्युनिकेट विद द सर्वर, and they may connect intermittently, and they are not always connected. ऑफ भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, एंड मे हैव डायनामिक आईपी एड्रेसेस। अगर हम कहें कि आमतौर पर डायनामिक आईपी एड्रेसेस ही होते हैं तो ये ज़्यादा सही होगा, लेकिन कुछ क्लाइंट्स होते हैं जैसे बिजनेस एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं और इसी तरीके से जो लेबॉर्ट्री वर्क में इस्तेमाल होते हैं, तो उनके लिए फिर जो है वो सिचुएशन परमानेंट आईपी एड्रेस की होगी। इसी तरीके से दे डू नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली टू ईच अदर। सो आमतौर पे क्लाइंट्स के दरमियान में आइसोलेशन डाली जाती है ताकि जो क्लाइंट प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना करें। ये इनिशियल सेटअप जब ये आर्किटेक्चर डेवलप हुई तो सिंप्लिसिटी के लिए ये चीज़ें जो हैं वो इनकॉर्पोरेट की गई। तो इस तरीके से सर्वर जो जो प्राइमरी कंपोनेंट इस आर्किटेक्चर का, उसके कुछ प्राइमरी एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरीके से क्लाइंट आर्किटेक्चर के कुछ प्राइमरी एट्रीब्यूट्स हैं। आजकल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो व्हीकुलर कम्युनिकेशन टू द रोड साइड यूनिट्स एंड व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, इस तरह के जो पैराडाइम है ये भी आ गए हैं। तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो जो इस एरिया में जो यानी जो व्हीकल्स हैं उनकी कम्युनिकेशन विद द व्हीकल्स एंड विद द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर उसके ऊपर जो है वो कोई एक रिपोर्ट जो है वो लिखना चाहे तो इसको मैं एक तरफ मैं सोच रहा हूँ अपने नोट्स में लिख लूँ, ताकि जो है वो आपको फिर थोड़ी देर के बाद मैं ये व्हाट्सएप भी कर दूँगा कि ताकि टॉपिक्स को अपनी रिपोर्ट के लिए जो है वो ज़रूर कंसिडर करें अपनी जो और प्रेजेंटेशन। सर सर इसमें थोड़ा सवाल है कि इसके क्या इसके बारे में बताना है, लाइक इनकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या बारे में? जी जी, मैं थोड़ा सा आपके सवाल को थोड़ा सा पहले मैं एक दफ़ा रिवर्ट करता हूँ। तो पहले जो है वो मैं ये लिखना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने आपको जो है वो सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में, सॉकेट एपीआई के बारे में बताया था कि एक उसमें मैं चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट प्रोग्रामिंग में चाहते हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट और चाहते हैं, तो दूसरा जो है ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, सबसे पहले तो मैं आपका सवाल ये है कि इसमें प्राइमरीली हम क्या चीज़ रिपोर्ट और जो प्रेजेंटेशन होगी तो उस रिपोर्ट में हम क्या चीज़ लिखेंगे और नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होगी। अगर ये सवाल अर्ली है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर देना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है पहले तो ये देखिए कि जो व्हीकल का पर्पस क्या है। व्हीकल का पर्पस जो है वो ये है कि एक जगह से दूसरी जगह मुसाफिरों को या फिर सामान को पहुंचाओ। जो सामान लगेज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बाज़ दफ़ा तो गाड़ी भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ चूँकि कंप्यूटर के अंदर जो एडवांसमेंट्स आई हैं उन्होंने तकरीबन ज़िंदगी के तमाम शोबों को मुतासर किया है या ये समझे कि इम्प्रूव किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो अब बजाते खुद 2-3 डिफरेंट फंक्शन कर रही है। देखिए व्हीकल का प्राइमरी फंक्शन तो हमने एक्सप्लेन कर लिया कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बजाते खुद एक बैटरी स्टोरेज है। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल एज ए बैटरी स्टोरेज, नंबर 1। नंबर 2, अब आप देखें चूँकि अब हमने इसमें कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिया है और कंप्यूटर के साथ साथ एक चीज़ जो क्या कहते हैं अब बहुत फेमसली इंटीग्रेट हो गई है, वो कहलाती है इंटरनेट। अब जब हम इस इंटरनेट की बात करेंगे तो अब हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये चलता फिरता एक आईओटी है।
ठीक है, IoT का मतलब क्या हो गया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर हो रहा है, यानी जो इंजन के अंदर हो रहा है, जो गाड़ी के अंदर डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए हैं, उनके अंदर जो भी डेटा गैदर हो रहा है उसको हम गाड़ी के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो गाड़ी के बाहर जो क्लाउड है उस पर भी भेज सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गाड़ी जो है ये चलता फिरता एक छोटा सा जो है डेटाबेस भी बन गई, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर कैमरा इंस्टॉल कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक व्हीकल स्पेशल पर्पस है और इसका एक स्पेशल टास्क है जो उसे वीकली जो राउंड लगाना होता है, और वो राउंड जो है वो रिकॉर्ड भी होना चाहिए। तो अब जो इमेजिंग की जो फैसिलिटी हम इसके अंदर डालेंगे, तो ये हमारे पास जो है ये एक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ इसकी एग्जांपल्स दी हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पोटेंशियल है, और व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेकिन अब जो है ना, आपके सवाल के उस इम्पोर्टेंट हिस्से का मैं जवाब देना चाहूँगा जिसमें आपने ये मुझसे पूछा कि किस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी नेटवर्क के जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें क्या कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो डेवलप होगा। तो उसका मैं आपको आंसर देना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसकी जो कम्युनिकेशन विद अदर व्हीकल्स, और इसी तरीके से विद द रोड साइड यूनिट्स। रोड साइड यूनिट्स कौन कौन से हैं? जिसमें के जो मेन जो यूनिट है, आप जानते हैं कि जब भी एक्सचेंज इंटरचेंज आती है तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। तो ट्रैफिक लाइट्स जो है उसके साथ व्हीकल की कम्युनिकेशन जो है वो क्या कैसे इस्टेब्लिश हो रही है। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम करूँ कि ये व्हीकल जो है ये हॉस्पिटल की वैन है या एम्बुलेंस है, और इसको जो है वो चाहिए रास्ता, और कंजेशन जो है वो जो ट्रैफिक में जो कंजेशन हुई हुई है, कैसे व्हीकल को इंफॉर्म कर सकती है, या व्हीकल कि कौन सा पाथ जो है वो सेफ है हॉस्पिटल तक जाने के लिए या पेशेंट तक पहुंचने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द करंट डायनामिक कंडीशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो मैं दोबारा इसको रिपीट करना चाहूँगा कि जो व्हीकल जो है वो अपने पास एक छोटा सा जो यूँ समझिए कि एक नॉलेज बेस एक छोटा सा डेवलप करे, और वो नॉलेज बेस जो है वो बेस्ड ऑन इट्स कम्युनिकेशन विद द अदर व्हीकल्स एंड द रोड साइड यूनिट्स टू develop a small knowledge base which can help to locate या यूँ समझिए कि लोकेशन अवेयरनेस फॉर द व्हीकल नंबर वन, कि जो है ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसकी लोकेशन क्या है, और नंबर टू फ्रॉम जो जो इनिशियल पॉइंट टू द डेस्टिनेशन, यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो सेफ जर्नी पाथ है वो क्या है। ठीक है, तो ये पाथ कंप्यूटेशन समझ लें आप, जो गूगल पे हम डालते हैं कि ये हमारी एक लोकेशन है ए है और ये बी है, और इसके दरमियान फिर गूगल मैप जो है वो एक लाइन ड्रा करता है कि ये जो है ना ये एक पाथ है, और दो और लाइन ड्रा करता है कि ये भी पॉसिबल पाथ्स है। तो इस तरीके से जो है ना ये एक रिपोर्ट बन सकती है। क्योंकि ये एरिया काफ़ी बड़ा है तो इसमें मैं चाहूँगा कि फोकस हो। उम्मीद है कि सवाल का जवाब हमने थोड़ा ज़्यादा ही डेप्थ में दे दिया है। इतनी डेप्थ में जो है वो आमतौर पे हम नहीं जाते। ओके, तो आगे चलें फिर इससे, अगर कोई और सवाल नहीं है तो। जी, एनी देयर इज एनी अदर क्वेश्चन? सर ये व्हीकल की जो आप बात कर रहे थे सर, ये ऑटोनोमस व्हीकल की भी बात कर रहे हैं आप? मैं देखें ऑटोनॉमस व्हीकल की मैं बात नहीं कर रहा,
लेकिन मैं सही सर। सिंपल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहा हूँ जो कि जी सर। ऑटोनॉमस भी हो सकती है। आपने एक जी सर। क्या डिफाइन कर दिया, जी सर। ये अपने नोट्स में डाल देता हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली मैं ऑटोनॉमस व्हीकल की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को फोकस करना चाह रहे हैं तो इट इज़ आल्सो गुड टॉपिक एंड इट इज़ आल्सो ए लेटेस्ट टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे जो जाइंट्स हैं इंक्लूडिंग गूगल, अमेजोन, ये बड़ा इस चीज़ के ऊपर ना वो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑटोनॉमस व्हीकल के ऊपर। अच्छा, हम थोड़ा सा फिर आगे चलना चाहेंगे। ओके, P2P आर्किटेक्चर। अच्छा, अगर ये सेशन डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर हम तकरीबन 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे और उसके बाद हम एक और सेशन करना चाहेंगे। आज कम से कम हम 2 सेशन करेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो फिर 3 सेशन पे मुश्तमिल होगी। तो हम पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर की बात करते हैं। इसमें जो सिस्टम है वो प्राइमरली नो ऑलवेज ऑन सर्वर्स। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जितने भी एरोज मेंशन हो रहे हैं इस डायग्राम में, वो क्लाइंट जो है उनके दरमियान है। सो क्लाइंट्स आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, जबकि क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर थी जो इससे पहले वाले पेज में हम देख रहे थे स्लाइड में, इट ओनली बेस्ड ऑन ए क्लाइंट विच रिक्वेस्ट एंड ए सर्वर विच रिप्लाई। ठीक है, वो रिक्वेस्ट रिप्लाई आर्किटेक्चर भी कहलाती है। सो आर्बिट्रेरी एट सिस्टम एंड दे कनेक्ट डायरेक्टली, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन से मुराद ये नहीं है कि ये जो है वो लाइन ऑफ साइट पे भी हो, क्योंकि अगर आप देखें तो ये 2 डिफरेंट नेटवर्क का हिस्सा है, ये 2 सिस्टम। लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब ये कि वर्चुअल कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन लेयर टू एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन। दरमियान में जब हम निचली लेयर्स पे आएंगे तो वो फिर एक अलग बात होगी। सो पीयर रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम अदर पीयर्स and they provide service in return to other peers. So that means कि both client process and server process are running on the same end user system. तो जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम जो है, जो इसके पहले का जो आर्किटेक्चर पड़ा था, अब हम उसको हर सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हैं। सो व्हाट इट ऑफर्स ए सेल्फ स्केलेबिलिटी, क्योंकि कुछ नए नोड्स आ रहे हैं और कुछ पुराने नोड्स जो है वो रिमूव हो रहे हैं। सो न्यू पीयर्स ब्रिंग न्यू सर्विस कैपेसिटी एज वेल एज न्यू सर्विस डिमांड्स। यानी जो नए क्लाइंट्स आएंगे, कुछ क्लाइंट नए जो पीयर्स आएंगे, कुछ जो है वो डिमांड कर रहे होंगे यानी रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे, और कुछ पीयर्स जो है वो रिप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना ये एक जो पैराडाइम बनेगा, यानी ये जो एक यूज केस बनेगा, ये एक स्केलेबिलिटी कैपेबिलिटी इसके अंदर बिल्ट इन होगी। जैसे यूजुअली आम तौर पे आपने बिटटॉरेंट जो है उन पे आपने कभी काम किया होगा या इंस्टॉल किया होगा। तो उसमें एक मेन चीज़ होती है कि जब आप किसी भी टोरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं तो आपको भी उस टोरेंट नेटवर्क का हिस्सा बनना पड़ता है। तो आप भी फिर उस एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं जिसके पास प्राइमरीली एक स्टोरेज है और उसमें जो है डिफरेंट डेटा जो है वो अवेलेबल है टू पीयर्स जिन्होंने वो सेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ। ऑब्वियसली कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं सिक्योरिटी को, कि आपका डेटा सिर्फ आपके पास ही रहे और आप उस नेटवर्क का हिस्सा ना हो, लेकिन आप उससे सर्विस ले रहे हैं। सो पीयर्स आर सर ये पीयर टू पीयर नेटवर्क की एग्जांपल है ये टोरेंट जो आपने बताया हमें। जी जी, बिटटोरेंट जो है वो ठीक है। पीयर नेटवर्क की एग्जांपल है, जी सर। उससे आप भी पीयर बन जाते हैं। अब हाँ, याद रखिए हम एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे सॉफ्टवेयर ही होगा जो हमें नज़र आ रहा है, तो इसलिए जी ये सर। क्या आता है इस चीज़ को समझना। peers are intermittently connected and change IP addresses, क्योंकि डायनामिक नेचर है ना, so their management is very complex। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके अंदर मैनेजमेंट
routines only. They are somewhat different. इसके बारे में अगर डिटेल हम जानना चाहें तो वी हैव एक्सेस टू द बुक और वहाँ जाके हम जो है वो इस पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक लेना चाहेंगे और उस ब्रेक के बाद फिर हम एक नया सेशन जो है वो ज्वाइन करेंगे। मैं आपसे कहूँगा ज्वाइन करने के लिए और नया इनविटेशन नहीं भेजूँगा।